Hello students, I am Divya Kashyap from IVIS Education. As you all know that I am your chemistry expert और हम पढ़ रहे हैं D and F block elements. So now in this video we are going to study about two important compounds. So first compound we will be taking up in this video, that is the potassium permanganate. राइट तो आपको पता है पोटाशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सब्सटेंस होता है. आपने अक्सर कहीं पे जो टेस्ट करना होता है या आप कह सकते हैं जहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशंस होती हैं वहाँ पे आप इसको सेल्फ इंडिकेटर की तरह भी यूज करते हो बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में इस वीडियो में. राइट तो हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पोटाशियम परमैंगनेट अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो आपको पता है पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4. क्या फॉर्मूला होता है इसका? KMnO4. दिस इज पोटाशियम परमैंगनेट. It is obtained from a ore that is pyrolusite ore. इसको हम किससे बनाते हैं? It is obtained from a ore which is MnO2 called as pyrolusite ore. So we'll see that what kind of reactions are involved जिसके अंदर जिसमें से आप pyrolusite ore से आप पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से बनाते हो. तो हम क्या करते हैं? We take this pyrolusite ore, we add KOH, right, and we add O2 to it. तो ऐसा जब हम करते हैं वी गेट K2MnO4 which is a green color substance and it is potassium magnate, not permanganate, it is potassium magnate, and along with that we get water. Now we convert this potassium magnate into potassium permanganate. How? We react this potassium magnate with chlorine and as a result we get potassium permanganate. Along with it we get KCl. Right. So this is how we obtain this purple color substance, that is the potassium permanganate, from the pyrolusite ore. Now if we look at the structure of this potassium permanganate and potassium magnate, we see that the structure is such that जो हमारे पास परमैंगनेट है उसके अंदर इस तरह से आपको पता है परमैंगनेट में MnO4 नेगेटिव फॉर्मूला है. दिस इज द परमैंगनेट आयन. तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है. अगर आप मैग्नेट आयन देखते हो तो मैग्नेट आयन इज MnO4 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज Mn, दिस इज O, 2O, दे पोजेस द चार्ज. And this is the structure for magnate ion. And if we talk about the color, we know that this is purple in color and this is green in color. And you know that like when we like here the green color is changing into the purple color. So how it is changing? It is changing because in this O2 negative is changing to O negative. Because it possesses O2 negative and it possesses only O negative. This is the momentary transfer of charge from metal to oxygen. It is the momentary transfer of charge from metal to oxygen, thereby converting the O2 negative into O negative. That is why the color is changing from green to purple. Right. So I think you got it. Now if we talk about its important property, we know that I have told you that इसका जो importance है is that it is a oxidizing agent and it can oxidize the substance in the neutral medium, it can oxidize in acidic medium, it can oxidize in alkaline medium too. So let's see कि जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो किस तरह से अलग अलग मीडियम्स में इसमें क्या चेंजेस आते हैं. तो अगर हम इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया इट कैन ऑक्सीडाइज इन द न्यूट्रल मीडियम, इट कैन ऑक्सीडाइज इन द एसिडिक एज वेल एज इन द अल्कलाइन मीडियम. तो क्या रहता है जब हम न्यूट्रल मीडियम को कंसिडर करते हैं, न्यूट्रल मीडियम में जो पोटेशियम परमैंगनेट है मतलब जो MnO4 नेगेटिव है इट कन्वर्ट्स इनटू MnO2. इट कन्वर्ट्स इनटू MnO2. और अगर आप इसी को एसिडिक मीडियम में देखेंगे तो एसिडिक मीडियम में हमने देखा जो परमैंगनेट आयन है MnO4 नेगेटिव, इट कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीज आयन विद 2 पॉजिटिव चार्ज, Mn 2 पॉजिटिव. और अगर आप इसको अल्कलाइन मीडियम में देख रहे हैं, अगर आप इसको अल्कलाइन मीडियम में देख रहे हैं तो अल्कलाइन मीडियम में क्या हो रहा है, दिस परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू MnO4
2 नेगेटिव, दैट इज द मैग्नेट आयन। तो ये 3 तरह के रिएक्शंस हैं जो ये खुद मतलब आप कह रहे हो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इस तरह से ये रिडक्शन रिएक्शंस इसकी हो रही है। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं हम। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो दिस कम्स आउट टू बी +7 और यहाँ पे ये आ रही है आपके पास, वी नो दैट दिस इज x, सो इट कम्स आउट टू बी 4, राइट। आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम कैसे निकालते हैं। सो +7 to +4 रिडक्शन हो रही है ना, तो रिडक्शन हो रही है तो इसमें ये कैसे रिड्यूस हो रहा है, इट इज टेकिंग इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स बैक, दैट इज व्हाई इट इज चेंजिंग फ्रॉम +7 to +4। अब हम इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर चुके हैं, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। आपको पता है न्यूट्रल मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2OH नेगेटिव लगा देंगे। जितने हमने यहाँ पे OH नेगेटिव लगाए उतने ही हम लेफ्ट साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे। बट नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस बट द हाइड्रोजन्स आर नॉट बैलेंस, क्योंकि वहां पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 OH नेगेटिव हम यहाँ पे और लगा देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या बन जाती है पर मैग्नेट आयन की न्यूट्रल मीडियम, इट इज MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O 3 इलेक्ट्रॉन्स MnO2 और इसको हम क्लब करके क्या लिख सकते हैं 4OH नेगेटिव। So this is the overall reaction for the permanganate ion. The changes it is undergoing, that is the reduction, and this is the overall reaction which has to be used. Similarly acidic medium का कर लेते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और यहाँ कितनी है +2। अगेन रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, यही हो रहा है ना, 5 इलेक्ट्रॉन से गेन कर रहा है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आपको पता है यहाँ 4 ऑक्सीजन है और वहां पे एक भी नहीं है, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं और जितने हमने वाटर मॉलिक्यूल लगाए अब हाइड्रोजन को दूसरी साइड बैलेंस करने के लिए आपको पता है हमें 8H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन की क्या हो रही है, दैट इज MnO4 नेगेटिव प्लस 8 पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स form Mn2 positive plus 4H2O. So this is the overall reaction which is taking place in the acidic medium. अब alkaline medium में कर लेते हैं where it is changing from permanganate ion to magnate ion. तो यहाँ पे oxidation state है +7 और यहाँ पे अगर हम oxidation state देख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है x minus 8 is equal to -2, that means it comes out to be 6, means gain of only 1 electron, and as far we can see that oxygen are on the both sides it is 4, so we don't need to balance. So this is the balanced reaction, but still I am writing it MnO4 negative 1 electron and we get MnO4 2 negative. So this is the overall reaction in the alkaline medium. So now we are going to see that how it is used in oxidizing or what kind of reactions or how we need to balance them. तो अब आप देखिए, लेट्स से मुझे एक रिएक्शन करना है, यहाँ कर लेते हैं, मुझे एक रिएक्शन करना है जिसके अंदर मेरे पास है कि फेरस इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस। आपको क्वेश्चन आ जाता है, शो द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वेयर इट इज ऑक्सीडाइजिंग द फेरस आयंस इनटू फेरिक आयंस। अब आपको पता है कि फेरस आयंस क्या होते हैं Fe2 पॉजिटिव और फेरिक क्या होते हैं Fe3 पॉजिटिव। मतलब 2 से 3 हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑब्वियसली इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब दिस रिएक्शन जो है हमें गिवन होगा आपको पेपर में कि ये एसिडिक में हो रही है, न्यूट्रल में हो रही है या अल्कलाइन में हो रही है, तो जिस मीडियम में हो रही है उस अकॉर्डिंग आपने किसी भी रिएक्शन को पिक कर लेना है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या मीडियम दिया गया है। अब जैसे यहाँ मैंने एसिडिक बोला तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। एज इट इज भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिखकर जैसे मैंने बैलेंस किया आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस इज MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, वी हैव 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, वी हैव Mn2 पॉजिटिव एंड वी हैव 4H2O. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 5 है, वी नीड टू बैलेंस देम, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5
हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया यहाँ मैंने, और 1 का मतलब तो ये ऐसे ही रहने वाला है, सो दिस इज गोइंग टू कैंसिल। तो ओवरऑल जो बैलेंस्ड आपके पास रिएक्शन रहेगी वो 5Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स कट चुके हैं, वी हैव 5Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 positive and we have 4H2O. So this is the balanced reaction where we can see that potassium permanganate is oxidizing the other substance like the iron in this case, and itself it is getting reduced. So depending upon the mediums which are mentioned, whether it is acidic, alkaline or neutral, you need to pick that particular reaction, and then you like first अगर आपको दिया है कि आयोडीन को आयोडेट या कुछ भी आपको दिया है, पहले उसको ऐसे लिख लो, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर दो, जो मीडियम दिया है वो वाला रिएक्शन ओवरऑल पिक कर लो। ओवरऑल अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये याद रखो कि कौन सी चीज़ किस पे कन्वर्ट होती है और उसको फिर बैलेंसिंग से ऐसे ओवरऑल बना लो। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है उनको इक्वल करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कटता है उसको काट दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड दिस यू विल गेट द ओवरऑल reaction. So I think you got it. So this is all about the potassium permanganate. So we are like finishing this video, and we'll meet in the next video, the last video of this chapter, where we are going to discuss about the other oxidizing agent, that is potassium dichromate. So thank you. We'll meet in the next video.